Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 2, globe, latitudes and longitudes. And this is our lecture number 3. So let's start. So students, so far we studied about the globe. What is globe? Actually, as you know that the globe is a true model miniature form of the earth. Okay. And what we are going to study in this chapter? First, we studied about the basic features, axis, poles, latitudes, and longitudes. Okay, this topic, now we finish this topic, basic features, axis, poles, latitudes, and longitudes. Second, we studied about the important parallels of latitudes. Third, third topic is heat zones of the earth. We have already studied this topic, heat zones of the earth. And then what are longitudes? Okay. So students, important parallels of latitudes. What are the important parallels of latitudes? There are 4 important parallels of latitudes. First is Tropic of Cancer, 23.5 degree north in the northern hemisphere. Second is Tropic of Capricorn, 23.5 degree south in the southern hemisphere. Third is Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator. And fourth is Antarctic Circle at 66.5 degrees south of the equator. Okay, and heat zones of the earth. Now you know that heat zones of the earth. There are 3 heat zones. First is torrid zone. There are 3 zones. First zone is torrid zone. Second is temperate zone. And third is frigid zone. We saw a picture in our previous lecture. Okay, so in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, इनके बीच का जो area है, this area, it is the yes, it is the torrid zone, and the area between our Tropic of Cancer and Arctic Circle and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. This is the temperate zone. And then after that, in between the area between the Arctic Circle and the North Pole and Antarctic Circle and South Pole. This is our frigid zone. Okay. After that, we studied about the longitude. What are the longitudes? So longitudes, yes, students, you know that to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. Okay, so we need a longitude. So longitude, yes, longitude क्या होते हैं हमारे? What are the longitude, students? So longitude, imaginary lines drawn from North Pole to South Pole, joining them and at right angle to the equator are called longitude, or you can say meridians. Okay, meridians. ये जो आपके पास longitudes हैं आपके पास, यस जो आपके पास लॉन्गिट्यूड्स हैं ये आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो जोड़ते हैं, ठीक है, ये आपके लाइन है, तो ये आपके लॉन्गिट्यूड भी है. यू कैन से दीज आर द मेरिडियंस. ओके, दीज आर द मेरिडियंस एंड दे आर सेमी सर्कल्स. दे आर द मेजर्स इन डिग्रीज and degrees are further divided into minutes and seconds. Okay,
Now, yes, student, now the next is so students, unlike parallel of latitudes, all meridians are of equal lengths. So thus it was difficult to number the meridian. Okay, actually आपके क्या होते हैं, आपके जो हमने देखा कि जो लैटिट्यूड्स जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वल नहीं होते, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वेटर से जैसे जैसा पैरेलल लैटिट्यूड आप पोल की तरफ लेकर जाओगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ इक्वेटर से आप लैटिट्यूड बनाते हो, तो वो पैरेलल होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, बट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और जितने भी सभी मेरिडियंस हैं उनकी लेंथ क्या होती है, उनकी लेंथ इक्वल होती है। ओके, सो अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ क्या होता है, क्योंकि ये देखिए आप, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द फर्स्ट मेरिडियन, ओके, देन ये दिस वन, सो सभी की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। सो दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। इसीलिए इन मेरिडियंस पर कौन के ऊपर नंबर बनाने, ठीक है, नंबर्स में इनको बताना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, नंबर्स को यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर सिर्फ हम इनको नंबर से प्रेजेंट नहीं कर सकते, इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। सो हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड that the count should begin from the meridian which pass through the Greenwich where the British Royal Observatory is located। तो इसीलिए क्या हुआ कि सभी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन, क्योंकि देखिए सभी के सभी इक्वल हैं, सभी आपके मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। तो किस लेंथ को नंबर कौन सा दिया जाए, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए अगर ये कहता है कि मैं 1 नंबर हूँ, ये वाला दिस मेरिडियन, ये मेरिडियन कहता है कि ये एक नंबर है, तो इधर की साइड जो दूसरा मेरिडियन होगा वो भी अपने आप को नंबर 1 बोलेगा, 1 नंबर। ठीक है, वो भी 1 नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर नंबर्स में मेरिडियंस को बताना बड़ा डिफिकल्ट था। सो इसीलिए ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनिच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। ओके, तो उन्होंने एक क्या बनाया, एक बेस, जैसे होता है ना एक बेस से स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने एक मेरिडियन लिया जिसको प्राइम मेरिडियन, यू कैन से दिस इज द प्राइम मेरिडियन। सो दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ओके, और ये प्राइम मेरिडियन जो है ये कौन कहाँ से लिया, ये वो वाला मेरिडियन है विच पास थ्रू द ग्रीनिच, जो ग्रीनिच से होकर जाता है वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है ग्रीनिच से। ये एक जो मेरिडियन पास होकर जा रहा है उसको इन्होंने क्या माना, उसको उन्होंने प्राइम मेरिडियन माना, यानी उसको 0 डिग्री से लेकर चले हुए। ओके, एंड इस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ, इस ईस्ट की तरफ क्या है, ईस्टवर्ड, इसके इधर की साइड सारे ईस्टवर्ड है और इधर की साइड वेस्टवर्ड। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारे ग्लोब को क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो दिस प्राइम मेरिडियन divided the globe into 2 equal halves. First is eastern hemisphere and second is western hemisphere. Okay, so its value is 0. This meridian is called the prime meridian and the value of 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. Okay, ये 0 डिग्री मेरिडियन, दिस इज द 0 डिग्री मेरिडियन। यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ से जाएंगे तो 180 डिग्री काउंट करेंगे, और वेस्ट की तरफ से जाएंगे तो उधर से भी 180 डिग्री काउंट करेंगे। ओके,
सो यहाँ दोनों तरफ से 180 डिग्री काउंट होता है. सो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. So therefore a longitude of a place is followed by letter E for the east and the W for the west. Okay, so this side, eastern side we mention it letter E. Okay, so longitude of a place, so therefore longitude of a place is followed by letter E for the east. Okay, east में हम इसको letter E से denote करेंगे जो भी हम longitude के लेंगे, and W for the west. और जब वेस्ट प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो वहां पर हम क्या लेंगे डिग्रीज को W. ओके, W वर्ड यूज करते हैं. सो इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. ओके, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है. आप ईस्ट, आप यहाँ दिस इज द प्राइम मेरिडियन ना 0 डिग्री एंड इन द and it prime meridian, it is divided the meridian into two equal parts. First is eastern hemisphere and second is western hemisphere. So 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाए तो 180 डिग्री एंड 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाए तो 180 डिग्री. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो हाउ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ नोट करने का कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. वो दोनों के दोनों सेम लाइन पर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जब जाते हैं वो सेम मेरिडियन पर मिलते हैं. ठीक है, तो सेम 180 डिग्री का मेरिडियन है, वहीं पर ही वो आपका 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट है. ओके, सो यस, लुक एट दिस पिक्चर. So this is our eastern meridian and this is our western meridians. Okay, and this is our Greenwich. Clear? Now look at the grid of a parallels of latitude and meridians. Look at the grid of a parallels of latitude and meridians of the longitude on the globe figure 2.6. Yes, this is the picture. It is given in your book, figure number 2.6. This is the grid. Okay, now look at the grid of the parallel of latitude and meridian of longitude on the globe. Okay, these are longitude and these are latitude and these are longitude. Okay, so you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitudes. Okay, so for example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. अब डुबरी असम में कहाँ पर है, वो कह रहे हैं कि डुबरी असम में जो डुबरी है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर वो सिचुएटेड है. तो अब आप क्या कर सकते हैं, ग्लोब में आप देखिए कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वो कहाँ पर ये पॉइंट, कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कट कर रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट पर 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पर असम में आपका डुबरी आप लोकेट कर सकते हैं. So find out the point where these two lines cut each other. So that point will be the location of the Dhubri. Okay. So yes, look at this picture. This is the meridian of longitudes. Okay, meridian of longitudes and degree of longitude are described as north or south of the equator from 0 degree to 90 degree. Okay, 0 degree to 90 degree latitude. Okay, degree of latitude are described as north or south of equator from 0 degree to 90 degree. This is our equator. Yes, this is our equator. Okay, and this equator is divided the globe into two equal parts. This is our two equal hemisphere. First is northern hemisphere and the southern hemisphere. Okay, और ये equator जो है from 0 degree to 90 degree
आपका नॉर्थ एंड साउथ में को डिस्क्राइब करता है। एंड द longitude, these are the longitudes, or you can say meridian, these are the longitudes. So longitude is measured east or west. ओके आप ये देखें, देखिए ये आपका जो है इक्वेटर से इधर नॉर्थ और दिस इज आवर साउथ. ओके एंड longitude is measured east or west of the prime meridian. This is our prime meridian, this is our prime meridian. ओके एंड ये डिवाइड कर रहे हैं हमारे ग्लोब को टू इक्वल हाफ्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड ई एंड डब्ल्यू. So measure east or west of the prime meridian at Greenwich from 0 degree to 180 degree. Okay. So students देखिए, look at this map. In this map, this is our here, this is our Assam. Okay. So Assam में आप यहाँ पर देखिए आप कि where is ये आपका 90 degree east, 90 degree east longitude, and this is a 30 degree north, 20 degree north. Okay, तो यहाँ पर कहीं बीच में आपके पास वो कह रहे हैं from the example Dhubri in Assam is situated at 26 degree north, 26 degree north. So this is a 20 degree north, this is a 30 degree north. तो यहाँ ही पर ही कहीं आपके पास 26 degree north में होगा. Okay, latitude. Okay, and 90 डिग्री ईस्ट एंड दिस इज 90 डिग्री ईस्ट. तो यहाँ पर देखिए यहाँ कहीं पर आपके पास, ठीक है, इधर यहाँ पर कहीं पर जहां पर ये काटेगा वहां पर आपके पास डुबरी जो है आप वहां पर लोकेट कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज longitude and time. Longitude and time. So the best means of measuring time is by movement of the earth, the moon and the planets. So the sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. So student, you know that the movement of the earth, moon and planets is the best means for measuring time. Okay, आपको टाइम को अगर मेजर करना है तो जो बेस्ट रिसोर्स है आपके पास वो क्या है, जो अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स जो हमारे हैं उनकी मूवमेंट. सो द सन राइजेस and the sets naturally every day throughout the world, you know that, and the sun, and it is the best timekeeper throughout the world. It is the best timekeeper throughout the world. और ये बेस्ट टाइमकीपर है हमारे. जो सन हमारा रेगुलरली आपको पता है राइज भी होता है और क्या होता है, सनसेट भी होता है एवरी डे. सो लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, such is the shortest at noon and longest as the at sunrise and sunset. तो हम ये क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे ये सनसेट या सनराइज होता है, इसकी ये हमारे लिए एक बेस्ट टाइम कीपर है. तो यहाँ से हम अपना लोकल टाइम जो है वो बता सकते हैं. लोकल टाइम हम लोग अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वो कैसे कि यू नो दैट कि शैडो कास्ट बाय द सन विच इज, मतलब हम उसकी ना जो सन की जो हमारी शैडो कास्ट होती है, जो सन से बनती है हमारी शैडो, उस शैडो के जरिए हम पता लगा सकते हैं. एंड यू नो दैट इन द नून, एट द नून, दिस इज द शॉर्टेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट. क्या जो हमारी शेडो होती है वो सबसे छोटी कब बनती है, जब हमारा दोपहर के 12 बजे का टाइम होता है. और नून में हमारा जो परछाई होती है, शेडो होती है, वो सबसे छोटी होती है. एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. और जब सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर ये सबसे आपकी शेडो जो है सबसे लंबी बनती है. आप इसको ट्राई करना, मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप देखना, जब सनसेट या सनराइज होता है तब देखना आपकी शेडो जो है वो कितनी आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग मिलेगी जब आप खड़े होंगे धूप में. लेकिन जब आप दोपहर के टाइम पर देखना, आफ्टरनून जब आप देखते हैं, आप खड़े होते हैं धूप में जाके, तो आपकी जो शेडो है वो सबसे ज्यादा छोटी होती है, बहुत कम आपको अपनी शेडो नजर आएगी. तो इससे एक जो है टाइम बताया जा सकता है. ओके, दिस इज द बेस्ट टाइम कीपर. So what is the time meridian of Greenwich
Greenwich has the sun at the highest point in the sky. All the places along this meridian will have midday or noon. So now you know that it is now you know that local time can be estimated by the shadow cast by the sun. So the shadow cast by the sun is the longest during the sunrise and sunset, while it is shortest at noon. So the time when the sun shines at the highest point in the sky over the Greenwich prime meridian, all places on the earth situated on the meridian will experience midday or noon. यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, कि आप अगर बात करते हैं किसकी, कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच, जो ग्रीनिच पर जो आपके पास क्या है, जो प्राइम मेरिडियन है उस पर जब सन जिस टाइम पर स्काई में क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, स्काई में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा प्राइम मेरिडियन पर. So all the places along this meridian will have midday or noon. तो इस प्राइम मेरिडियन के ऊपर जितने भी सभी प्लेसेस लोकेटेड होते हैं, जितने भी सभी प्लेसेस इस मेरिडियन पर होते हैं, इस मेरिडियन पर होते हैं, उन सभी प्लेसेस पर उस टाइम पर क्या होगा, मिड डे. ठीक है, दोपहर के 12 बजे होंगे, मिड डे और नून टाइम होगा. So as the earth rotates from west to east, and now you know that, you know very well कि earth rotates from west to east. west से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी दिखाया था पिक्चर के साथ. So the earth rotates from west to east. So those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. तो स्टूडेंट ये आपने माइंड में रखना है कि जो आपके ग्रीनिच से, ठीक है, जो आपके प्राइम ग्रीनिच यानी कि जो आपके प्राइम मेरिडियन है, उससे जो ईस्ट की तरफ जितने भी सभी मेरिडियन होंगे वहां पर टाइम क्या होगा, थोड़ा वहां पर टाइम आगे होगा, जो ग्रीनिच पर जो टाइम होगा उससे ज्यादा टाइम होगा. ठीक है, बढ़ता जाएगा. और जहां ग्रीनिच अगर वेस्ट की तरफ जाए, पीछे जाए वेस्ट की तरफ, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्राइम मेरिडियन पर, देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन. ओके, तो यहाँ पर अगर इसकी तरफ जाएंगे, तो अगर यहाँ पर आपके पास मान लो क्या बजे हैं, आफ्टरनून का टाइम है, नून का टाइम है, 12 बजे हैं दोपहर के. तो आप जैसे जैसे इससे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, और जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाएंगे, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर टाइम आपका कम होगा. ये अभी हम इसको कैलकुलेट करके बताएंगे, देखिए कैसे. ठीक है, सो ये अपने माइंड में आप रखना है कि एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोस प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनिच, ग्रीनिच के जो ईस्ट में जितने भी प्लेसेस हैं विल बी अहेड ऑफ ग्रीनिच टाइम. ग्रीनिच टाइम से वो उनका टाइम आगे का होता है. दोस टू वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, और जो वेस्ट की तरफ होते हैं वो उसमें टाइम पीछे होता है. सो द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. कैसे, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, यू नो दैट. ओके भाई, जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में. ओके, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. सो अब वो अगर मान लो 360 डिग्री 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर्स में वो क्या कर रही है, एक लगा रही है, रोटेट हो रही है. तो 1 आवर में वो कितना करेगी, 360 डिवाइडेड बाय 24. इट मीन्स कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि एक पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री होता है. सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 डिग्री. ओके, दिस इज 15 डिग्री. ओके, 15 डिग्री यानी कि 1 आवर में 24, अगर 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है तो 1 आवर में कितनी करेगी, 15 डिग्री. ओके, 15 डिग्री करेगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, सो 15 डिग्री. ओके, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री. अगर 15 डिग्री 1 आवर में वो रोटेट करती है 15 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने में करेगी, 4 मिनट्स में.
ओके, क्योंकि 1 आवर में कितने होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। सो 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री रोटेट कर रही है, तो 1 डिग्री कितने में करेगी, डिवाइड कर दो आप 60 से, 60 मिनट से उसको, तो कितना हो जाएगा आपका बस 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में वो 1 डिग्री जाती है आगे, 1 डिग्री रोटेट कर जाती है 4 मिनट्स में। सो व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनिच, और अगर मान लो आपके पास यहाँ ग्रीनिच पर प्राइम मेरिडियन पर क्या है 12 नून हो रहे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनिच। अब क्या है कि हर एक डिग्री के ऊपर, 1 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर मान लो ये 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स का आपके पास गैप है, तो 15 डिग्री में कितने मिनट्स का गैप हो जाएगा, कितने मिनट्स का गैप हो जाएगा, 15 डिग्री मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 4, दिस इज 60, यानी 60 मिनट्स। ओके, तो 15 डिग्री में 60 मिनट्स वो आगे का टाइम चलेगा, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, 1 आवर। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर प्राइम मेरिडियन पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो इससे अगर 15 डिग्री आगे चले तो वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा, वहां पर बज रहा होगा क्या बज रहा होगा, 1 o'clock। ओके, एक 1 बजे का टाइम होगा वहां पर। और ऐसे ही अगर हम पीछे वेस्ट की तरफ चले, अब ये पीछे का टाइम है, तो यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो इससे पीछे 15 डिग्री पर क्या होगा, 11 बजे होंगे मॉर्निंग के, 11 AM। ओके, सो इन द वेस्ट at 15 degree longitude it's 11 AM, and in the east at the 15 degree longitude it is 1 PM. Clear students? So 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM, but at 15 degree west of Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hour, so it will be 11 AM. So similarly at 180 degree, तो ऐसे ही हम अगर 0 डिग्री से देखो आगे 180 डिग्री तक जाए, आगे पूरे लास्ट तक जाए 180 डिग्री तक, so it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich। तो 180 डिग्री के ऊपर अगर इधर प्राइम मेरिडियन पर 0 डिग्री पर आपका दोपहर के 12 बजे हैं, तो 180 इससे आगे 180 डिग्री पर अगर आप जाएं तो वहां पर उस टाइम क्या हो रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, मिड नाइट का टाइम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay students, so now the time is over, so that's all for today. Have a good day.